Good afternoon, students. Am I audible, all of you? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. see, last lecture we discussed valence bond theory. Just we started valence bond theory. So, who proposed this valence bond theory? Can you know the scientist who proposed this valence bond theory? Yes. So there are two scientists, Hitler and London. These two scientists proposed the theory to explain the chemical bonding of a molecules. But there are certain limitation at the starting of the valence bond theory. So this theory is further improved with the help of concept hybridization. Okay, which is that scientist? Yes, it is. Paul. Yeah, it is Linus Pauling. Okay, so Linus Pauling later on used the concept of hybridization. He used both VBT as well as hybridization simultaneously and explained successfully the various kinds of bonding that is present in simple as well as complex molecules. Okay, so today we going to study the critical uh, cases in VBT. Just hold on. ओके स्क्रीन सबको दिख रहा है ना स्क्रीन Yes, sir. Yes, sir. okay so see what VBT we know that VBT in VBT what are the assumptions VBT consider half filled orbitals are overlap with each other okay to form a bond so whenever there is a head on overlapping or end to end overlapping of orbitals which bond is formed yes Hello. whenever there is a head-on overlapping of atomic orbitals, which bond Sigma is bond formed? is formed. Sigma bond, sigma bond. Sigma bond. Sigma bond is formed, and lateral overlapping there is a formation of pi bond. Okay. But if you consider the case of carbon, see carbon atomic number is 4 and its configuration is 1s2 2p2. So in carbon there are two half filled orbitals. Okay, so according to VBT, the maximum bond formed by this carbon is 2. Okay, but this is not a case. We know that carbon is a tetravalent and carbon form 4 bond. Carbon can form 4 bond. So here with the help of VBT, we can say that this carbon, okay, there are two half filled orbitals of carbon, and if there is a hydrogen, then only two hydrogen okay get attached or this carbon can form only two bond with the hydrogen. So we know that there is a formation of CH2 okay as there this carbon is there and which having two half filled orbitals so which that carbon can form only two bonds with hydrogen okay. So this is a limitation of VBT. Actually, this is a limitation. We know that carbon can form 4 bond with the hydrogen and that molecule is methane, that is CH4. So VBT cannot explain, okay, initially VBT cannot explain how the 4 bonds are formed by this carbon with 4 hydrogens. Okay, so this Linus Pauling used the concept of hybridization. So in hybridization, we know that there is an excitation of the electron. So see in CH4 molecule, as there is a formation of 4 bond, that means carbon should have 4 half-filled orbitals. 4 half-filled orbitals. Now it has 2 half-filled orbital in ground state. So what happened in excited state? One of the 2s electron is shifted
or get excited to vacant 2p orbital. So if you consider this, then there is a formation of 4 half-filled orbitals. Okay, now these 4 half-filled orbitals then intermix together to form sp3 hybrid orbital like this. This is a sp3 hybrid orbital, and this sp3 hybrid orbital then overlap with orbitals of hydrogen, overlap with orbitals of hydrogen. So there are 4 hydrogen atoms, okay, which is half filled. Okay, so sp3 hybrid orbital overlap with 1s orbital of each hydrogen. So as there are 4 hydrogens, okay, so each sp3 hybrid orbital form one bond with hydrogen. So as there is a 4 sp3 hybrid orbitals, they form 4 bond with 4 hydrogens, and this molecule is a methane. Okay, so we've seen that whenever there is a formation of hybridized orbital, this hybridized orbital oriented in space in such a way that, okay, they acquire minimum repulsion. So as there is a minimum repulsion, means there should be a minimum energy associated it. So these 4 sp3 orbitals are oriented in such a way that the bond angle between these orbital becomes 109.5, and this geometry is a tetrahedral geometry. So the bond angle in tetrahedral geometry is exact 109.5 degree. Okay, so this actually concept use Linus Pauling to explain the bonding in methane, whereas VBT can't explain, because VBT only consider the overlapping of half-filled orbitals. But the concept of hybridization, okay, there is excitation of the electrons to the empty orbital. Okay, so this concept is used by Linus Pauling and explain the bonding in methane. So similarly, so this hybridization we are studied in detail, okay, each one, but we can't study involvement of d orbitals. Okay, so which d orbital is there? So see sp3 hybridization. So in sp3 hybridization, out of this s, p and d orbital, see which orbital is the lower in energy. If you see these orbitals, the increasing energy, so 3s orbital is lower energy, then 3p, and then 3d. Okay, so basically there is first 3s, after 3s completely filled, then electron goes into 3p and then 3d. Okay, so here 1s, 3p and 1d atomic orbitals are mixed together to form 5sp3d orbital. Okay, so see there are 5 hybrid lobes are there. Okay, so they oriented in space. See, this is the orientation of orbitals, or this is the orientation of orbitals. So as there are 5 orbitals, out of 3 orbitals, okay, they orient in such a way that they arrange in a plane. They 3 are arranged in a one plane. See this arrangement. These are arranged in one plane. Okay, and 2 orbitals, they are lying horizontally. Okay, so these 3 orbitals which are in plane. Okay, so which is these orbitals? Mostly there are 5 orbitals. So sp3d. Now there is a involvement of d orbitals. Okay, so which d orbitals, what do you think, which d orbital is there? Yes, anybody? Which d orbitals? We know that there are 5 d orbitals. Yes, which are?
dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. We know the shapes of that orbitals. Now we see the shape of sp3d hybrid orbitals. And tell me which orbital should be involved in this sp3d hybrid orbital. The formation of sp3d hybrid orbital, which d orbital can take part? dx square minus y square. dx square minus y square. Why? Along the axis है ना. Yes. The along the axis lies करते हैं ना वो. Along the axis lies करते हैं. Okay. और कोई कुछ बताना चाहता है? कोई दूसरा है क्या ऑर्बिटल? dz स्क्वायर या dxy या dyz, dzx, दूसरा कुछ हो सकता है क्या? So see here, the Akshay is correct. dx square minus y square, this hybrid orbital are taking part, because see their lobes are lying along x and y axis. And if you see this axis, these lobes are also lying on x, y and z axis. Okay. So basically dx square minus y square is a suitable orbital which can take part in sp3d hybrid orbital. Now see these three orbital lying in one plane and these two orbital lying that is horizontally. So which is the shape of sp3d? Yes, it is. What is the shape of sp3d hybrid orbital? Yes. ये शेप, ये मॉलिक्यूल का शेप कौन सा है? ये एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन Bipyramidal. नो 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 नो. हाउ इट इज बाइपिरामिडल? Trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. Okay. Trigonal bipyramidal. Bipyramidal. See these three atoms lie in a plane. That's why it is trigonal. Okay. Trigonal है ये. Because these three are lying in one plane. और यहाँ पे दो है, ये कैसे है? दो है means by. Trigonal by pyramidal. क्या आएगा शेप? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ये यहाँ पे एक पिरामिड जैसा है, नीचे एक पिरामिड जैसा है. ठीक है. अगर इसको ये करोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है. तो कौन से मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे देखिए जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करके ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप बनाते हैं. ASF5, PCl5, SF4, ICl3. So after this we studied VSEPR theory. So I know you are studied very well in BSc. Just we recall that theory. Then we understand by using the sp3d hybrid orbitals how we determine the shape of the molecule. Okay, geometry, shape and hybridization. Here see, they are considering the example of PCl5. So PCl5 phosphorus, we know that phosphorus is a having the, yes, its outermost electronic configuration क्या रहेगा phosphorus का? यहाँ पे देखिए phosphorus 15 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. तो 3s2, 3p3. तो 3p3 means वहां पे 3 क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है. 3 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल है. लेकिन के एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा है कि सी दिस वन ऑफ द 3s ऑर्बिटल इज ओके एक्साइटेड इनटू 3d ऑर्बिटल. इनिशियली ग्राउंड स्टेट में 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट है पूरा. 3s2, 3p3, 3d 0 है.
लेकिन यहाँ पे हमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं? 3 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें PCl5 में 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो यहाँ पे एक्साइटेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सो वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम 3s टू 3d. अब देखो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपको मिल रहे हैं. 3s में एक है, 3p के 3 है और 3d के 1. सो टोटल 1 2 3 4 5. So these are intermixed together to form, yes, 5 sp3d hybrid orbitals. Okay, now this 5 sp3d hybrid orbital overlap with 5 chlorine atoms. Overlap with 5 chlorine atoms. Okay, to form this PCl5 molecules. And the shape of this PCl5 is trigonal bipyramidal. Okay. Up everybody know this hybridization sp3d2. Okay, sp3d2. Now the example of sp3d2 is sf6. Okay, so see s, its ground state configuration is 3s2 3p4. So here only 2 half filled hybrid orbitals, whereas in sp3d2 how many half filled orbitals we required? 6. Yes, 6 half filled orbitals are we required. See sp3d2, ये d के 2 है, p के 3 है, 5 हो गए, s का 6. Total 6 half filled orbitals should be there. Then and then only there is a formation of sf6. So what happened? One of the 3s electron is get excited into 3d. Okay, and one of the 3p orbital is excited into 3d. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो रहे हैं, एक 3s से 3d में हो रहा है और एक 3p से 3d में हो रहा है. तो 2 हो रहे हैं, ध्यान में रखो. तो अभी एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. अब दिस sp3d2 ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, मींस इंटरमिक्स हो जाएंगे और आपको ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा. अब there are 6 fluorines surrounds this sulfur and 6 fluorines having, each fluorine having one half filled orbital. So that one half filled orbital give 1 electron. So in this way there is a formation of 6 bonds. Okay, so this SF6 having the geometry, having the hybridization sp3d2. तो sp3d2 कौन सा रहता है ज्योमेट्री? Octahedral. Yes, it is Octahedral. octahedral. Very good. sp3d2 octahedral ज्योमेट्री रहेगा. ठीक है, तो SF6 में 6 का जो ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है वो octahedral है. ठीक है. Similarly, ये जो hybridization and VBT we can applying in complexes. Okay, let us consider a complex hexamine cobalt third. Hexamine cobalt third. So in hexamine cobalt third, the cobalt is in +3 oxidation state. This is the cobalt atom. Its ground state configuration is 3d7 4s2. आपको 3d सीरीज बाय हार्ट होना चाहिए. देखिए कौन सा भी कॉम्प्लेक्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए, आएगा एग्जाम में. ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d7 4s2 है, लेकिन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इन हेक्सामिन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में है +3. आपको ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन करना आना चाहिए. यहाँ पे ओवरऑल चार्ज 3+ है और यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल है. दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज अगर 3+ है और ये न्यूट्रल है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है वही चार्ज मेटल आयन पे होता है, वही चार्ज मेटल आयन पे होता है. ध्यान में रखो. तो यहाँ पे कोबाल्ट पे होगा 3+ चार्ज. देन व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट 3+? नाउ इट बिकम्स, yes,
यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और डी का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. सो इट बिकम्स 3d यस 6. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कोबाल्ट 3+ का 3d6 4s0 4p0. अब यहाँ पे देखो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंसीडर करते हैं वहां पे क्या होता है लिगैंड्स होते हैं एंड लिगैंड्स डोनेट्स देयर इलेक्ट्रॉन पेयर. तो जब कॉम्प्लेक्स का बात आता है तो वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए. जब ये मॉलिक्यूल्स का बात आता है तो यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए. दिस इज अ डिफरेंस. यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमें अवेलेबल करने हैं और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमें अवेलेबल करने हैं. ध्यान में रखो. ओके तो यहाँ पे हमें 6 लिगैंड अप्रोच हो रहे हैं तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करने पड़ेंगे अवेलेबल करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे CO3+ में 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है. 4s का 1 और 3p के 3 ऐसे 4 है और 2 हमें क्या करना है वैकेंट ऑर्बिटल्स को अवेलेबल करना है. तो देखिए कोबाल्ट 3+ है तो ये कोबाल्ट 3+ स्टेट ये लो स्पिन स्टेट रहता है. हमेशा ध्यान में रखो कोबाल्ट के जितने भी +3 कॉम्प्लेक्सेस है ये लो स्पिन होते हैं. मीन जो भी आपका कौन सा भी ये लिगैंड रहेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक्ट होगा. वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक्ट होगा. तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको पेयर अप करता है. तो अभी ये यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एक्ट हो जाएगा इन CO3+. तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर हो जाएंगे. तो ये एक पेयर यहाँ हो जाएगा ये एक पेयर यहाँ हो जाएगा. तो ये 2 अवेलेबल हो जाएंगे एम्प्टी ऑर्बिटल बन जाएंगे अभी. तो ये D के 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएंगे एक ये और एक ये 3. सो 3 4 5 6 तो टोटल देखो हमने 6 ऑर्बिटल्स क्या किए वैकेंट किए. तो ये 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो जाएंगे और D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा ऐसा D2sp3. अब ये 6 के 6 वैकेंट है और अमोनिया इज केपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 अमोनिया क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा हेक्सामीन कोबाल्ट 3+. ओके तो हमेशा ध्यान में रखो जब सिंपल मॉलिक्यूल रहता है इसमें हमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल करने हैं. वेराज जब हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे हमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करने हैं. एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करने हैं. ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस. कुछ डाउट है क्या कुछ डाउट है आपको ओके अब ये जो कॉम्प्लेक्स है अब यहाँ पे देखो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ने क्या किया है देखो कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप किया है. ओके तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे 4s 4p के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो रहता है वो 4d रहता है लेकिन यहाँ पे 4d यूज नहीं हुए हैं और इनर 3d यूज हुआ है. तो जब इनर 3d ऑर्बिटल यूज होते हैं ओके तो उस कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और जब आउटर होंगे जैसे sp3d2 यहाँ पे देखो d2 है या आउटर है और ये पहले आ गए तो इनर होते हैं. ध्यान में रखो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. सो इनर ऑर्बिटल में पहले d ऑर्बिटल्स जो रहते हैं वो यूज होते हैं और sp3d2 होंगे तो नेक्स्ट जो रहेंगे जो एम्प्टी रहते हैं खाली रहते हैं 4p के बाद के जो ऑर्बिटल 4d रहेगा वो यूज होता है. ठीक है अब यहाँ पे देखो sp2d नहीं रहता है एक्चुअली वो रहता है dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल dsp2. तो सबको पता है जब dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है कौन सा ज्योमेट्री होता है
डी ऑर्बिटल यूज होता है यहाँ पे, DsP2। यस, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री कौन सा रहता है हमेशा ध्यान। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होगा बेटा, DsP2 में कितने ऑर्बिटल्स है, 4। ट्राइगोनल Square planar. बाइपिरामिडल में, हाँ वेरी गुड, स्क्वायर प्लेनर, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ध्यान में रखो हमेशा। और यहाँ पे जो d ऑर्बिटल होता है वो भी dx² माइनस y² ऑर्बिटल है, ये इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, p ऑर्बिटल के 2 है px py, और d के रहते हैं dx² माइनस y²। ये ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं। अगर इनके सभी बंद हो जाएगा आप रिजॉइन हो जाइए, ठीक है, ओके। तो DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ध्यान में रखो, DsP2 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब हम एग्जांपल स्टडी करेंगे, ओके। टेट्रामीन कॉपर 2+, ओके, टेट्रामीन कॉपर 2+। तो कॉपर आपको पता है, कॉपर ये एनोमलस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 3D ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड होता है, 4s में हाफ फील्ड रहता है। तो ये हाफ फील्ड, ये फुल्ली फील्ड, तो स्टेबल है। एक्चुअली उसका होना चाहिए था कॉपर का 3d9 4s2, लेकिन 3d9 अनस्टेबल है, तो वन ऑफ द s इलेक्ट्रॉन गोज इनटू d, तो वो फुल्ली फील्ड हो जाएगा और s हाफ फील्ड हो जाएगा। तो दोनों में स्टेबिलिटी एक्वायर करेंगे, d भी स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा, s भी स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा। इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का क्या रहता है, 3d10 4s1। अब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये न्यूट्रल है, तो जो ओवरऑल चार्ज है वही मेटल का है, तो कॉपर 2+ में रहेगा। तो 2+ में रहेगा तो 4s एक निकल जाएगा और यहाँ से एक निकल जाएगा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओके। तो 3d9 रहेंगे, 2+ में कितने रहेंगे, 3d9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें d ऑर्बिटल चाहिए, तो जब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो हमने शिफ्ट किया, ये हमने शिफ्ट किया कहाँ से, 3d से 4p में ट्रांसफर किया ये इलेक्ट्रॉन, और इसको वैकेंट बनाया, इसको वैकेंट बनाया। ये क्यों होता है, ये NH3 बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो वो क्या है, d ऑर्बिटल यूज करता है। तो d ऑर्बिटल वो कैसे यूज करेगा, यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा, वो कहाँ से शिफ्ट होगा, 3d से 4p में शिफ्ट होगा। फिर ये देखो एक वैकेंट हो गया d का, एक s है, और ये 2p के 2 है, तो ये DsP2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। फिर ये अमीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, और ये टेट्रामीन कॉपर 2+, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो ज्योमेट्री है और स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर प्लेनर है। ये कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, टेट्रा साइनो निकेल सेकेंड, ओके। यहाँ पे निकेल सेकेंड ऑक्सिडेशन स्टेट में है। कोण कुठले रे, कुठून बाहेरून कोण रेफरन्सने आलेत का विचार बरं, का डायरेक्ट आलेत, हो का, थांबा मी आलो, आहेत का ते अवेलेबल बघ, नाहीतर मी करतो। हाँ मग दिसले मग। सो सी यहाँ पे NiCN4 2- में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni2+, ओके। तो Ni2+ क्या रहेगा, 3d8 4s0 रहेगा, ओके। Ni 3d8 4s2 रहेगा, लेकिन Ni2+ क्या रहेगा, 3d8 4s2। तो यहाँ देखो ये ऑर्बिटल हमें यूज करना है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, साइनार लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये पेयरिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पेयर हो जाएगा और ये वैकेंट हो जाएगा। तो ये वैकेंट D, ये S, ये P2, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से आपको NiCN4 स्क्वायर प्लेनर मिलेगा। आपको कौन सा मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन आपने अगर NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स लिया, NiCN से मैंने लिगैंड हटा के CO लिगैंड लिया, NiCO4, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4? CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है,
तो कौन सा ज्योमेट्री फॉर्म होता है NiCO4 में? स्क्वायर प्लेनर होगा। अरे स्क्वायर प्लेनर होगा क्या या दूसरा कुछ होगा? सेम होगा सर उसमें भी। सेम होगा, प्लानर ओनली। स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो देखिए नहीं होता है स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए NiCO4 में CO इज ए न्यूट्रल लिगैंड, CO न्यूट्रल लिगैंड है, तो Ni पे चार्ज कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो NiCN4 में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन NiCO4 में Ni 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D8 4s2 4p0। ओके, अब क्या है, ये 3D ऑर्बिटल हम वहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ 3D ऑर्बिटल नहीं यूज होंगे। तो वहाँ क्या होता है, देखो ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पेयरअप हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वो पेयरअप हो जाएंगे और ये वैकेंट होगा। तो आपका ये 4s वैकेंट है एंड 3 4p वैकेंट है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सा रहता है बताओ? कौन सा रहता है? अरे sp3 में कौन सा रहता है? अभी बताया था ना, sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहाइड्रल। तो ये आपको क्वेश्चन आता है, why NiCN4 is square planar whereas NiCO4 is a tetrahedral। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल को हम क्या कर सकते हैं? अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3D8 है, 4s2 ऑलरेडी भरा हुआ है, यहाँ पे खाली है, इसलिए इसको हम पेयरअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अवेलेबल करना है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हम नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि 4s को वैकेंट कर सकते हैं। तो 4s को कैसे वैकेंट करेंगे? तो यहाँ शिफ्ट करके दो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3D पूरा कंप्लीटली आपका फिल हो जाएगा। और ये अब ये वैकेंट हमने किया 4s और ये 4p, ये क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन NiCN4 में Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट Ni+2 है, तो +2 है तो ऑलरेडी ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो फिर हमें एक अवेलेबल कर सकते हैं इसको पेयर अप करके, इसलिए Ni2+ में हम dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। NiCN4 में NiCO4 में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए NiCO4 इज अ टेट्राहेड्रल। तो इसका आप ड्रॉ करके वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आप लिखो, ये क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, why NiCN4 2- is a square planar whereas NiCO4 is a tetrahedral। ओके, तो ये तो क्रिटिकल सर उसमें हाँ वो बोलिए। आउटर कॉम्प्लेक्स होगा। आउटर कॉम्प्लेक्स आप करने की कोशिश करो। समझो D है, वहां पे कौन सा है? 4D है, तो PD ऐसा कभी होता है क्या? अभी ये 3 यूज कर रहे हो और D के कितने करना है आपको? 1 करना है, तो DP3 ऐसा कुछ हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे D का एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है, वो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। मिक्सअप कौन होते हैं? जो इक्विवेलेंट है, और ये इक्विवेलेंट कौन है? 3D 4s 4p, यही इक्विवेलेंट है, यही यूज करने हैं, क्योंकि यही मिक्सअप हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग सेम है। और हाइब्रिडाइजेशन में हम अजम्पशन क्या करते हैं? कौन से ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाएंगे? जिसकी एनर्जी सेम है या नियरली सेम है, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। ध्यान में रखो, ये फंडा है हाइब्रिडाइजेशन का, इसलिए यही यूज करके हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे कि ये 4s को वैकेंट कर सकते हैं, तो 4s को वैकेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। तो ये 4s को वैकेंट किया, ये 3p तो ऑलरेडी है, इसलिए sp3 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। गेटिंग?
ओके ओके सर। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए, ठीक है। NiCN4 का तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, आपको NiCO4 का एक्सप्लेनेशन करना है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? कुछ डाउट है अभी? नो ओके सर। ओके ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट है D2sp2। D2sp2 बहुत रेयर केस है ये, D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन अभी कुछ ऑर्बिटल मीन्स कुछ बना नहीं पाते। कौन बनाता है? देखो यहाँ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री रहता है इसका। कौन सा रहता है? स्क्वायर पिरामिडल।